Very good morning. This is Amitabh this side, madam. I have a claim pending with NSE for which I have sent a reminder yesterday. I request to please close my case, deciding in my favor. Hello. Yes, madam. Yes, sir. Just tell me your reference number, please. Yeah, Hello. जी madam. Yes, sir. You have received 1,895, right? And the pending amount is 3,970. For that, you have Yeah, madam. That was registered a review, right? yeah, that was estimated by me, but I do not know the calculation, the kind of cheating broker has done with me. You would know it better. So the amount I have put in somehow is mapped to my outstanding of 55 Bank of Baroda shares, for which I have sent an email also. Yesterday I have prepared Excel sheet, my purchase price of Dena Bank shares, which were Okay. converted to Bank of Baroda. Now, as per purchase price, I have 200 bought 200 shares at 29 rupees 30 paise, amounting to 5,860 rupees on 25th October uh, 2017 by Okay. via this. There is a contract note also. One second, madam. I have added a contract note number also on the email I have sent recently. Okay. And then I have bought 100 shares of 28 rupees 75 paisa, amounting to 2,875 on 26th October. Another 200 shares at 29.25 paisa, 100 each, amounting to 2,925 rupees. So all these trades between 25/10 2017, 25th October 2017 to 26th October 2017 amounts to 14,585 rupees as of purchase per price. Okay. So you have registered a review, right? Madam, that And was all this. done on 13th January. The process document of yours shows that there will be initial request which you will decide and evaluate, and then you will inform me, which you have informed me by settling at 1895 and not settling the rest of the amount. Then you have given us a right that we can review and put it into redressal committee, grievances redressal Right. committee. That is a Right. diagram on your website. I am reading, Right. understanding from what you have put it. Now, Right. my grievances is that 55 shares are not settled, right? Now, Right. grievance committee will judge the genuineness and then will settle in favor of investor, not in favor of trading member. Right. Until Right. and Right, unless sir. you see that I am totally talking mischief, or I do not have any ground to claim my shares, right? Some of the people may Right. be there that there is a scope of something different happening. But I am giving you all the proof here. I have sent Soda summary and I am giving you contract notes here, exact amount, exact date. So now where is the doubt left? All proof. Then there is a holding statement where a broker has given, I have shared earlier, they have declared that they have 55 shares of Bank of Baroda with them. So, madam, where is the doubt now? What is the gap? So, and in There is. that process, madam, there is a total indication that grievance redressal committee will decide within 15 days. Now, from 13th January till 8th of February, this is more than 20 days to 25 days. कहीं तो ये एंड हेलो. होगा. जी मैडम. सर देखिए, आपने रिव्यू के लिए डाला है, आपने वैलिड प्रूफ भी डाला है, आप ये बोल रहे हो, राइट? बिल्कुल मैडम. हाँ. हाँ. तो सर देखिए, रिव्यू का प्रोसेसिंग है ना, जब भी आप भेजते हो तभी नहीं चालू होता है सर, ठीक है? जब भी ये ओरिजिनल क्लेम्स जो है ना, उनका प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा, तब जाके सर रिव्यू का प्रोसेसिंग चालू होता है सर. मैडम, मेरा तो ओरिजिनल क्लेम ही हुआ ना, कोई बहुत बड़ा रिव्यू तो नहीं है ये. तो ओरिजिनल आप क्लेम डिसाइड कर मतलब लीजिए मैं मैडम. न्यू मैं क्लेम बात कर रही हूँ अब मैं सर, तो न्यू क्लेम की बात कर रही हूँ. मैडम, आप हेलो. खुद डिसाइड कर लीजिए. 2-3 लोगों को मिलके अभी डिसाइड करके साइड पे कर दीजिए. बहुत कॉल हो गया, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी हो रहा है. सर लगातार मतलब इशू बन ये रहा भी है. नहीं कर रही हो सर, रिव्यू के प्रोसेसिंग के लिए आपको वेट करना होगा सर.
प्रोसेसिंग रिव्यू का जल्दी स्टार्ट नहीं होता है सर। तो आप तो रिव्यू में डालिए मत ना, अभी तो हम टेली कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने मुझसे पूछे भी ना, आपने डिसाइड कर दिया। मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, मुझे बताइए कि मैं आपके डिसीजन में हेल्प कैसे करूँ, मैं आपको प्रूफ ला देता हूँ। और मैंने तो बोला ही नहीं कि आप जब आप बोले कि आपको अंडरटेकिंग आएगी, मैंने कहा मैडम अंडरटेकिंग क्यों भेज रहे हो? अगर आप मेरा सेटल नहीं कर रहे हो तो मेरे को बताओ, मैं आपकी और हेल्प कर देता हूँ, कहीं से मेहनत करके लेके आता हूँ। सर देखिए, हम आपकी मेहनत पूरी वेस्ट है ऐसे नहीं बोल रहे, हम रिव्यू के प्रोसेसिंग जो आपने भेजा है डॉक्यूमेंट उसके प्रोसेसिंग के लिए सर टाइम लगेगा, मैं वही बोल रही हूँ आपको। आपने जो प्रूफ दिया है वो वैलिड नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको सर। आपको सिर्फ वो प्रोसेसिंग के लिए वेट करना है सर, ये मैं बोल रही हूँ आपको। मैडम क्यों वेट करना है? आप देखिए छोटी सी अमाउंट है सर बट वो प्रोसेसिंग ही वैसा है सर, जब तक अच्छा मुझे आप बताइए, केसेस जो ये है सारा डेटा तो उनका आपके नहीं पास होता है है मैडम, मेरा डेटा सारा आप सर, बट फिर क्या रिव्यू का मंगवा रहे हैं? प्रोसेसिंग सर उसी फॉर्मेट में होता है सर। मैडम अब ये बताइए, वो ब्रोकर भी ऐसे ही करता जा रहा है, मैं करूंगा करूंगा, साल भर से तो करने सर का बट हम देता जा रहा है। डिनाई नहीं कर रहे सर, आपका प्रोसेसिंग आपका क्लेम आपको नहीं मिलेगा ये हम नहीं बोल रहे सर। आपको आपका मिलेगा सर पेमेंट आपको, बट रिव्यू के प्रोसेसिंग के लिए टाइम लगेगा। आपने वैलिड प्रूफ्स भी दे दिया है, सो काइंडली वेट कीजिए सर। इसके मैडम कॉन्ट्रैक्ट नोट के नंबर पहले वाला है 25 अक्टूबर का, दूसरा वाला है 26 अक्टूबर 2017 का, दोनों। और सेटलमेंट डेट है पहले वाले में 27 अक्टूबर 2017, दूसरे वाले में 30 अक्टूबर 2017। ओके मतलब सर, ये सब आपने मेल में एनएससी में ही एग्जीक्यूट हुआ ट्रेड है। आप मेरे को पिछली कॉल में बता रहे थे कि आपका एनएससी में हुआ है कि बीएससी में हुआ है। मैडम आप हमें क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? आप तो पब्लिक के लिए, पब्लिक की डिफेंस के लिए कार्य कर रहे हैं ना। सर देखिए, मैं यहाँ पे ऑडिटिंग नहीं करती हूँ, आपने क्लेरिफिकेशन मेल में दिया है, वो आगे ऑडिटर्स को फॉरवर्ड होगा सर। रिव्यू का जब भी प्रोसेसिंग होगा तब जाके प्रोसेसिंग होके आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा सर। मैडम आपको आपको रिव्यू तो के पहले ही प्रोसेसिंग के डिसीजन लिए में आप वेट करना बताइए। है सर। बताइए मैडम, एक्सचेंज के पास डाटा नहीं रहता है क्या? जैसे मैंने क्लाइंट कोड दिया, यूनिक क्लाइंट कोड दिया, अपना ट्रेडिंग मेंबर कोड दे दिया, डीपीआईडी दे दिया, उसके बाद मेरे से प्रूफ मांगने की गुंजाइश कहाँ रहेगी? सारा डाटा तो आपके पास है, ब्रोकर के पास है। देखिए सर, आपने खुद ही क्लेरिफाई किया कि वो पहले दूसरे शेयर्स थे, फिर वो जाके बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर हुए, तो आपने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर्स का डिटेल्स दिया है, तो हमने डायरेक्टली बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स का स्क्रूटिनी किया है, तब जाके हमको ट्रेड नहीं मिला। अभी आपने क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि वो ट्रांसफर हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में शेयर, तो उसका एक स्क्रूटिनी फिर से होगा ना सर, वही स्क्रूटिनी के लिए सर मैं आपको वेट करने बोल रही हूँ। चलिए मैडम, आपकी बात भी जो बता दी मैंने सुन ली, पर मुझे बताइए ब्रोकर आपकी हेल्प नहीं कर रहा क्या? ब्रोकर को बोलो ये क्लाइंट कोड का क्या मसला है, सारा डेटा दे आपको वो। अब मैं तो रिसर्च कर रहा हूँ, फिर अपनी डिफेंस में चिंतित, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए मैडम, पूरी चिंता करके फिर मैं अपनी बात को फिर आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब इतनी स्ट्रेस ले रहा हूँ मैं, पहले अपना डेटा खुद ही ढूंढ रहा हूँ, है ना। ये दो एजेंसियां हैं, प्राइमरी एजेंसी आप हैं, दूसरा ब्रोकर को आपने काम पे लगा रखा है। ब्रोकर आपके काम कहना भी नहीं बना रहा, डिफॉल्ट हो गया है। डेटा आपके पास भी होना चाहिए। अगर आप बॉदरेशन नहीं लेना चाहते हैं तो ब्रोकर को बिठा लीजिए अपने वहां पे, इंटरनेट सिस्टम से सारे उसके डाटा आपके ऑफिस में बैठ के सारे निकाल के दे देगा वो, है ना। दो एजेंसियां, पूरी दुनिया में ऐसे ही काम होता है मैडम। मैंने 3 मुल्कों में, 4 में कर, 5 इंडिया छोड़ के 5 में कर लिया इसमें, इसी फील्ड में, आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकरेज में। मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि काम क्या है कि एक बार अगर मैंने अपना क्लाइंट कोड देके कंप्लेंट लगा दी, बहुत बड़ी बात होती है किसी की कंप्लेंट हो जाना। ब्रोकर 30 साल से काम कर रहा था, ऐसा न लाएगा कि बाहर हो गया है। तो उसका जो एक बार मैंने आपको अपने आइडेंटिटी दे दी, उसके बाद सारा डेटा तो आपके पास है। ट्रांजैक्शन नेशनल एक्सचेंज में लॉग होती है, आप ऑपरेशन मत लीजिए, ब्रोकर को पकड़िए ना, चोर है वो। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स ऑफेंसेस विंग इन्फोर्समेंट डायरेक्टर पे क्लॉज लगाइए, अगर कहना नहीं मान रहा उल्टा लटका दिए, सारे उनके एसेट्स जब्त कर लीजिए, सारी कंपनियां जब्त कर लीजिए उनकी, कि आपने इस दिन के लिए उसको, इस दिन के लिए उसको लाइसेंस किया था। कैसे नहीं दे रहे मैडम? वो कैसे नहीं देगा? सारी कंपनी, उनके सारे मैनेजर भी मिले हुए हैं। मेरी बात, अगर वो नहीं दे रहा है तो ऑब्वियसली हम एक्शन लेंगे, मैं ये बात बोल रही हूँ आपको। मेरे को तो वो मैडम, मेरे को तो इनोसेंस में वो, मेरे को तो उसने 50 बहाने बना के पहले ही लूट लिया, है ना। ये स्टॉक बोरोइंग और लेंडिंग का केस है, ठीक है ना।
ये एनालॉजी इसकी लोग बताते हैं कि आपने किराए का मकान दिया ब्रोकर ने, उसने आगे पे दे दिया किसी को, उसने आगे किराए पे चढ़ा दिया, अब पूरी चेन उसकी शॉर्टिंग हो गई और शॉर्ट वो कवर नहीं कर पाया। ये सब कोई गुड प्रैक्टिसेस में नहीं आता है, ये सब ग्रे एरियाज में आता है, ये गलत काम करने के तरीके हैं और उसने उधेड़ दिया। अब उसको आप चोर को उल्टा नहीं लटका पाएंगे। अब मेरे पे आप क्यों कर रहे हैं मैडम? ये तो फिर लोग फिर इसमें परेशान हो जाएंगे ना मैडम, और फिर सवाल उठाएंगे आपसे, एनएससी के ऊपर सवाल उठाएंगे। सर देखिए, जो भी उनके ऊपर लीगल एक्शन लेना है, उनका केस चल रहा है सर ऑलरेडी, उसमें सर मैं तो ऐड ऑन नहीं कर पाऊंगी। जो लीगल केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, मैडम लीगल केस तो बाद की बात है। जब आपने उसको, जब आपके साथ उसने किया ना, आपने उसको एक्सपेल किया, डिफॉल्ट किया, फिर अब रह क्या गया? काम तो चलाना पड़ेगा ना। जो उसने काम किया है उसकी बुक्स, आप सॉफ्टवेयर होता है, बुक्स का मतलब, मेरे कहने का मतलब सीधा सीधा है, उनका सॉफ्टवेयर एक्सेस ले लीजिए, उनके अकाउंट्स का जो ट्रांजैक्शन हुई हैं उसको जमा करानी पड़ेंगी एक्सचेंज में। क्यों नहीं कराएगा वो आप फिर उसके ही बंदे को लगाओ, कितने पैसे ले लेगा वो? एक सिंपल सा एग्जीक्यूटिव स्टार्टिंग लेवल का भी नहीं आप बिठा पाओगे 20-25 हजार वाला महीने का। 2 महीने में सारा रिजॉल्व हो जाएगा, आपका 2 लाख से ऊपर का खर्चा नहीं आएगा। सारी 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 देश का बुरी हालत कर रखी है आपने इन्वेस्टरों की। 2-3 लाख लोग आपने रगड़ दिए इसी के चक्कर में। बताइए मैं गलत क्या कह रहा हूँ? बता दीजिए आप क्या गलत कह रहा हूँ, और कैसे काम करवाएंगे आप? खुद बोला, देखिए सर अभी आपने खुद बोला कि 2 महीने में जो भी है रिड्रेस हो जाएगा। हम भी वही बोल रहे हैं सर, रिव्यू के लिए थोड़ा टाइम दे दो, रिड्रेस हो जाएगा। आपको यहाँ पे सर आपने वो डायग्राम क्यों बना के रखा हुआ मैडम? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे डायग्राम लगाया हुआ है कि 15 दिन में ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी ये आपको डिसाइड करके देगी 15 दिन के अंदर। जब मैंने आपके यहाँ कंप्लेंट लगा दी, कंप्लेंट की बात कर रहे हो, वो और फिर आपने मुझे कहाँ पहुंचा दिया मेरे से बिना पूछे? आपने, जब मैं आपको कहता रहा मैडम आप मुझे बताइए, डोंट गेट टू अ डिसीजन। जब मेरी और आपकी टेली कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें आपने 2 जगह टेली कॉन्फ्रेंसेज बता रखी हैं कि आप करेंगे, तो जो टेली कॉन्फ्रेंस में जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैडम आप मुझे बताइए कहाँ पे गैप आ रहा है, पहले तो मुझसे प्रूफ आप मांग रहे हैं उस चीज का जिस चीज का सारा डेटा आपके पास है ना? जिस चीज का सारा डेटा आपके पास है, मेरे जो मैंने डेटा नहीं दिया वो भी आपके पास है, उस चीज का आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं? मुझे पहली बात तो यही नहीं समझ आई। और अगर मांग भी लिया तो मुझे टाइम तो दीजिए थोड़ा। आपने डिसाइड भी कर दिया पहले ही, ये तो शरेआम मिली भगत हुई ना। ये तो या तो काम करने का तरीका ही गलत हो रहा है, या आपको भी गलत उकसाया जा रहा है, या गलत बताया जा रहा है। आप बताइए कोई सेंस बन रही है इस चीज की? आप जो कि आपने मुझसे, मैं रोकता जा रहा हूँ कि मैडम अंडरटेकिंग मत निकालिए, मेरे को पूरा डिसीजन चाहिए बिकॉज आई एम जेन्युइन। सर तो आपको डिसीजन ही दिया है ना इम्प्लीमेंटेशन लेटर में, तो आपको रिव्यू में एक क्लैरिफिकेशन देने का मौका भी दिया जा रहा है। अंडरटेकिंग निकालने से पहले जब मैं कह रहा हूँ कि मैडम आप मुझे बताइए गैप कहाँ पे है, क्यों आप ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे डिसीजन दे सकते हैं जब मैं आपसे मौका मांग रहा हूँ? और उसके बाद मैंने, और उस चीज पे आप मांग रहे हैं जो चीज आपके पास है। अगर मैं सिविल कोर्ट के पास जाऊं तो सिविल कोर्ट के पास कोई डेटा नहीं है। ये तो आप देखिए ना, कौन सा मैनेजर है जिसको अपना काम करने का दायरा समझ नहीं आ रहा? सिविल कोर्ट जज के पास डेटा है? डेटा कहीं पे भी किसी भी दुनिया के कंट्री में बता दीजिए कि वो बताए कि मेरे पास स्टॉक ट्रेडिंग का डेटा रहता है। सिविल कोर्ट कहेगा मैं ठेका लिया हुआ डेटा का? कहां लिखा है, किस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? किसी भी कंट्री में नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज के बाद हेलो एनएससी सिद्धेश्वर, हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो, हाँ जी सिद्धेश्वर जी, गुड मॉर्निंग। यस सर, बोलिए। सर अभी मैडम से बात हो रही थी, उन्होंने फोन ही काट दिया मेरे। बताइए कोई ऐसे तो काम कैसे चलेगा कि मैं, सर मैंने रिव्यू मेल दिया तो मेरा डिसीजन करवा दीजिए। मैंने डिटेल्स भेजे हैं कल आपको, एक्सेल शीट बना के सारे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मेंशन्ड है। 200 शेयर्स मैंने देना बैंक के खरीदे हैं, 29 रुपए 30 पैसे के अमाउंट है। 5860 रुपए 25/10 2017 को खरीदा गया है। ट्रू कॉन्ट्रैक्ट नोट 2017। 100 शेयर खरीदे हैं मैंने, 300 शेयर 26/10/2017 को एट द प्राइस ऑफ 28 रुपए 75 पैसे 100 शेयर। फिर 200 शेयर है 29 रुपए 25 पैसे वाया कॉन्ट्रैक्ट नोट, सेटलमेंट डेट 30/10/2017। ये टोटल अमाउंट आ जाती है जो एक्सेल शीट पे मेरी बन रही है, वो 14,585 है, विच इज 14,585। ये सर मैं आपको ईमेल में प्रूफ भी भेज दिया है, सौदा समरी भेज दी है, ये सब तो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। सर मेरा डिसीजन करवा दीजिए। सर ये हायर एंड से आपका डिसीजन हो जाएगा सर उसके ऊपर।
सर मेरे को वो डायग्राम आपने बनाया हुआ है प्रोसेस जो 6 जनवरी 2021 का आपने एनएससी की साइट पे लगाया हुआ है कि पहले मैं कंप्लेंट करूंगा, फिर उस पे आप उसको रिव्यू करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। तो मेरा पहले तो ये क्वेश्चन है कि आपने डिसाइड गलत कैसे कर दिया और आप डाटा मुझसे क्यों मांग रहे हैं जब सारा डाटा एक्सचेंज का है। ये तो मैं अपने इस ट्रेड का डाटा दे रहा हूँ, एक्सचेंज के पास मेरा सारा डाटा है इसके सिवाय भी। तो डाटा तो वो मांगे अगर मैं सिविल कोर्ट के पास जाऊं, जज बोले कि भाई हमारे कोर्ट में तो यहाँ डाटा ही नहीं होता स्टॉक एक्सचेंज का, आप हमें स्टॉक एक्सचेंज से डाटा लाके दें या ब्रोकर से डाटा लाके दें, तब तो बात बनती है। पर आप जो बैठे हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, आपके पास सारा डेटा है और अगर आपने उसको ब्रोकर को एक्सपेल्ड और डिफॉल्ट किया तो सारी उसकी बुक्स भी आपके पास होंगी। तो आप मुझसे डेटा क्यों मांग रहे हैं? मैं तो सिंपल अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ दे सकता हूँ, देना चाहिए था मुझे, जो कि मैं दे चुका हूँ। और मैंने अपना डीपी आईडी, मेरा क्लाइंट कोड आईडी, वो सारा देके कि ये केस इसका है। उसके बाद तो सारा डेटा आपके पास है। आप मुझे डेटा मंगवा के बेवकूफ बनाने का मतलब ये कोई पॉइंट बन नहीं ना। व्हाट इज द पॉइंट? जब सारा डेटा एक्सचेंज के पास है ऑलरेडी, ट्रेडिंग का डेटा, तो मुझसे क्यों मांगा जा रहा है? पर फिर भी मैंने दे दिया। नहीं सर, देखो आपने जो रिव्यू के लिए डाला हुआ एप्लीकेशन है सर, उसके ऊपर कुछ दिन में वेरिफिकेशन होकर आपको बताया जाएगा सर, उसमें कुछ जो भी डिसीजन आएगा वो। सिद्धेश्वर जी सर ये देखो, ये हमारे एंड से प्रोसेस नहीं होता सर, तो मैं इसमें आपको ये नहीं बता, नहीं, मतलब मैं कोई भी चाके में मेरे एंड से सर। आपको बिना उसके बैठा दिया गया है। आप मुझे बताइए, मान लीजिए आप हो, आपने ट्रेड किया एक्सचेंज पे, अब आप मान लीजिए फैसला कराने के लिए मैं एक्सचेंज के पास आया हूँ, वहां पे आपके डायग्राम में लिखा हुआ है कि अगर जेन्युइन इन्वेस्टर है तो उसके फेवर में डिसीजन देना है। जेन्युइन भी नहीं लिखा, इतना ही लिखा है कि डिसाइड इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर, है ना। अनटिल अनलेस देयर इज समथिंग मेजर, आपको बहुत बड़ा शक होता है कि यार ये तो बिल्कुल ही झोल हो रहा है, जबकि डाटा सारा आपके पास है। अब आप डिसाइड करने वाली एजेंसी हैं, तो मैं आपके पास आया हूँ, गवर्नमेंट की एजेंसी हैं आप, है ना। अगर मैं यही यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, मैं सिविल कोर्ट में जाता हूँ, तो सिविल के पास ट्रेडिंग डाटा रहता है, उनके पास है, वो अपने उनकी बुक्स होती है उनके पास, नहीं ना होती। वो अगर एनएससी से मांगेंगे तो एनएससी से कुछ भी करके देना ही पड़ेगा। अगर क्यों वो देगा एनएससी के बाद कुछ भी मांगते हैं एनएससी के पास डेटा होगा ना, कोर्ट के पास तो डेटा नहीं होगा। एनएससी जो वो अगर एनएससी से मांगेंगे या फिर ब्रोकर के पास भी मांगेंगे, तो जिसके पास भी मांगेंगे उनको देना ही पड़ेगा। एट वो कोर्ट है ना। और चलिए मान लीजिए तो कोर्ट किसी के पास भी कहता है, मांगते हैं एनएससी को वो उनको कहता देना ही है, पड़ेगा। एनएससी को कहता है कि आप डेटा दें, तो क्या आपके पास डेटा रहता है? तो वो तो अभी सर मेरे एंड पे मैं आपको ये नहीं बता सकता कि हमारे पास डेटा रहता है तो मैडम, मतलब कौन सा सर, डेटा सर, रहता है या फिर सर, नहीं रहता है। सर इस पे बोलिए। आपके इस आंसर पे इतना बड़ा क्वेश्चन पड़ेगा कि एक्सचेंज का दुनिया भर में काम क्या होता है। जिस मर्जी कंट्री में चले जाएं, जिस मर्जी में चले मैं जाएं, आपको क्लेम प्रोसीजर के बारे में ही मुझे यहाँ पे आपको बता पाऊंगा। मेरे पास जो ट्रेनिंग सर किया हुआ है मुझे आज वो एक्सचेंज क्लेम का प्रोसीजर के मेन बारे रोल में क्या बताया हुआ है? है। एक्सचेंज क्या डेटा करती है? स्टोरेज और डेटा के बारे में मुझे तो ट्रेड करवाती ट्रेनिंग नहीं दिया है गया है। और ट्रेड का स्टेजिंग एरिया है। ब्रोकर उसको एक्सचेंज के सर्वर में जाकर ट्रेड करता है, ब्रोकर मेरे बिहाफ पे। डेटा कहाँ, ट्रेड स्टेजिंग कहाँ होती है? एक्सचेंज पे होती है। फल कहाँ बेचे जाते हैं? मंडी में बेचे जाते हैं। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज है व्यापार, लेना देना। जो यहाँ लेन देन होगा वो खाते पे नहीं चढ़ेगा एक्सचेंज पे। कमाल कर रहे हो आप तो। एक्सचेंज के पास सारा डाटा है, मेरे को सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ देना है, मेरे को डीपी आईडी देना है, मेरे को अपना आईडी देना है, मुझे सारे आईडीज देने हैं ताकि मेरा मास्टर डाटा आपके पास आ जाए कि ये बंदा है, ये आईडी से ट्रेड करता था, इस ब्रोकर के पास ट्रेड करता था। बाकी सारा डाटा तो आपके पास है। उसके बावजूद भी मैंने दे दिया ब्रोकर से लाके, इधर उधर से लाकर। ब्रोकर से लाऊंगा मैं और कहाँ से लाऊंगा? ये तो डबल हो गया ना, डबल एफर्ट हो गई। डाटा तो सारा आपके पास ऑलरेडी है। मैं तो कहूंगा जी, आप बोलेंगे भाई साहब आप कौन है जो कंप्लेंट कर रहे हैं? वो कुछ दिन में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा सर। सर आपने पहले ही गलत किया ना स्टेप, पहले में आपने मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं तो कहूँगा मिली भगत है। आप मुझे बताएं आपका क्या कहना बनता है जब मैं आता हूँ? सर एक मिनट, देखो आपका जो रिव्यू एप्लीकेशन है सर वो कुछ दिन में प्रोसेस हो जाएगा सर। देखो मैं रिव्यू एप्लीकेशन के बारे में बात कर सकता हूँ यहाँ पे, बाकी इन्वेस्टिगेशन रिव्यू में भी तो 15 दिन का टाइम है सर। आपका जो एक प्रोसेस डॉक्यूमेंट है, डायग्राम बनाया उन्होंने कि पहला स्टेप ये 7 स्टेप का दिखाया हुआ उन्होंने। प्रोसेस फ्लो डायग्राम है 6 जनवरी 2021 का। उसमें बोला है ग्रीवियंसेस रेसल कमेटी 15 दिन में डिसाइड करेगी अगर सेटिस्फाइड नहीं है इन्वेस्टर। जनवरी 13 से 15 दिन से कहीं ऊपर हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और आपने, अगर मैंने आपके पास आता हूं तो आप बोलेंगे कौन है आप, मेरी आइडेंटिटी पूछेंगे। मैं बताता हूं जी, मेरा ये रहा मेरा यूनिक क्लाइंट कोड, ये रहा मेरा डीपी आईडी, ये रहा मेरा क्लाइंट आईडी। तभी आप मेरी कंप्लेंट ले पाएंगे ना।
उससे आगे आपसे मेरे से डेटा नहीं मांगना चाहिए था, क्योंकि सारा डेटा आपके पास है उसके बाद का। आपने तो ये बोला है किसकी कंप्लेंट और क्या कंप्लेंट, ये पूछना था आपको। मेरी कंप्लेंट इसके अगेंस्ट वो मैंने बता दिया, ये कंप्लेंट ये भी बता दिया। अब उसके बाद तो सारा डेटा आपके पास है ही है। अगर मैं सिविल कोर्ट में जाऊं उनके पास डेटा नहीं है, अगर मैं उनसे बोलूं 10 साल सर, डेटा तो आपके पास होता है, नहीं होता, सर, I'm really क्योंकि sorry, but आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं आप लिखा कुछ गया। टाइम के लिए आप वेट करो सर, आपका रिव्यू का एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सर, ठीक है। सर मैं तो आज कॉल कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं टेली कॉन्फ्रेंस। Morning, NSA Satya, may I assist you? नमस्कार मैडम, दिस इज अमितोष दिस साइड। Yes, sir. मैडम आपने फोन काट दिया था, सर ने भी काट दिया, तो ये मैंने आपके लिए ईमेल में पूरा डिटेल्स लिख के दोबारा से प्रेजेंटेशन जो दिया, एक्सेल शीट बनाकर मैंने अभी मेल भेजा है, जिसमें मैंने अपना कार्वी का DPID नंबर बता, नीचे एक्सेल शीट में पूरी डिटेल्स है, 500 शेयर्स हैं, उसकी किस परचेज प्राइस क्या है, और लिख कर टोटल अमाउंट जो है 14,585 का, ये मेरे पास डिटेल्स हैं। और मैंने अटैचमेंट में कॉन्ट्रैक्ट नोट्स और समरी सौदा भी अटैच किया है, और उनके कॉन्ट्रैक्ट नोट के जो है मेरे 25/10/2017 को मैंने बाय किया है। कॉन्ट्रैक्ट नोट है CC3/10/2017 और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट नोट है 30/10/2017। सो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आ गए हैं, सौदा समरी टोटल आ गई है, आपके पास सारे डिटेल्स आ गए हैं मैडम। ये मैं कई दिनों से रिमाइंडर भेज रहा हूँ, तो आप ये प्लीज मेरा अभी सेटल करवा दीजिए। सर सी दैट मीन्स आपने ये जो डाला है वो रिव्यू के लिए दिया हुआ है, करेक्ट? एप्लीकेशन इट्स अ रिव्यू प्रोसेस, करेक्ट? रिव्यू में है मैडम, रिव्यू तो होगा ही ना, क्योंकि डिसीजन पहला गलत हो गया, तो रिव्यू तो है ही है। नहीं, आपने करेक्ट है, पहले करेक्ट। क्लेम किया था, हाँ, रिव्यू के रिव्यू लिए क्या हुआ है? यस, तो रिव्यू केस के लिए वेट करना पड़ेगा, इट इज नॉट येट बीन स्टार्टेड। मैडम अगर इसमें आपको रह क्या गया ऑलरेडी ना दिया हुआ है। जी मैडम, देखिए बार बार मैं उसी बात पे आऊँगा, उससे मेरा भी नहीं अच्छा लगता। मेरी आपसे बड़ी अर्नेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट है, अब इस पे डिसीजन ले लीजिए, आज मीटिंग कर लीजिए, आपके पास पूरे डिटेल्स आ गए, मैं कब तक दोबारा कॉल करूँ आपको? सर सी वी डू अंडरस्टैंड कि आपने दिया हुआ है डॉक्यूमेंट्स फॉर रिव्यू, बट रिव्यू केस अब तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है सर। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो सबने रिव्यू के लिए दिया, आपको वेट करना पड़ेगा सर। आई गेस अभी रिव्यू जो अभी स्टार्ट होगा वो मार्च के बाद हो सकता है, सो यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम सर। रिव्यू केस इज नॉट येट बीन स्टार्टेड, ये कंफर्म। मार्च मैडम देखिए, आपके जो प्रोसेस में लिखा हुआ है 15 डेज में आप करेंगे, जो ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी का है, तो उसमें देखिए जनवरी 13 को मैंने कहा था। और प्लीज मैडम, आप मेरे को ये समझ नहीं आई कि एक्सचेंज इज स्टेजिंग एरिया, एक्सचेंज मीन्स यू आर ट्रेडिंग देयर, वो सारी एंट्री आपके पास रहती है। आप मुझसे डिटेल्स प्रूफ के मांग रहे हैं, मुझे वो समझ नहीं आया क्यों आपने ये डिसीजन लिया। पर जो मेरे को तो सिर्फ इतना ही बताना, मेरा क्लाइंट आईडी इतना, मेरा ये है, देना बैंक का शेयर मेरा है, बाकी सारे डिटेल्स तो आपके पास ही है। मुझे क्लाइंट आईडी बताना है, कौन सा ट्रेडिंग मेंबर आईडी है वो बताना है, और अपने बैंक के डिटेल्स देने हैं, अपने आइडेंटिटी की डिटेल्स देने हैं, आन नंबर, पैन नंबर, आधार नंबर, उससे ताकि मेरी आइडेंटिटी हो। बाकी डेटा तो आप ही के पास है। आप मुझसे डेटा मांग मांग के आपने पहले भी मुझे कंफ्यूज किया। सर वी डू अंडरस्टैंड, आई गेस मॉर्निंग में भी आपकी बात हो चुकी थी, तो वहाँ पे भी हमारे कलीग ने आपको वही बताया सर, फॉर रिव्यू केस यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम सर, गिव देम सम मैडम टाइम। ब्रोकर भी पिछले साल से यही कर रहा है, आप वेट करें वेट करें वेट करें, अब ट्रस्ट किस पे किया जाए? मुझे फिर यहाँ से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ना। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैडम मैं कॉल करके अब चले जाता हूँ, शाम तक आप डिसीजन लीजिए। जनवरी 13 से मैं रिमाइंडर्स कर रहा हूँ। नो सर, ऐसा नहीं होगा ना सर कि अभी रिव्यू केस स्टार्ट कर, रिव्यू केस के थोड़ा टाइम चाहिए सर। दे विल गो अगेन थ्रू योर प्रोफाइल वंस अगेन टू चेक इट। सो रिव्यू केस दैट्स व्हाट इज बीन इंस्ट्रक्टेड। क्या करेंगे मैडम? अपने सिस्टम में एंट्री डालिए, आ जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम है आजकल तो सारे। नहीं सर, ये रिव्यू के लिए आपने ईमेल किया हुआ है राइट, डिफॉल्ट ISC पे, एंड एज आई सेड रिव्यू केस अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है सर, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वी विल डू कंसिडर इट, बट यू नीड टू वेट फॉर सम टाइम सर फॉर रिव्यू। ये अगर आप कह रहे हो आज इवनिंग तक मैं बता दो किसकी बात पे भरोसा करूं मैडम? चलिए 2 दिन ले लीजिए ना मैडम, मैंने तो सारी डिटेल अभी हैंड टू हैंड दे दी हैं। आप ईमेल खोलिए, अपने कमेंट्स डाल दीजिए कि दीज आर डिटेल्स आर वेरीफाइड। आप मेरी डिटेल्स को प्लीज। चेकिंग ओनली, दैट्स व्हाट रिव्यू भी उसके लिए कहते हैं ना। अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं रिव्यू की केस मींस व्हाट, अगर आपने ये जो क्लेम NSA ने इनएडमिसिबल किया है आपने रिव्यू के लिए दिया हुआ है, करेक्ट? सो फॉर दैट ऑडिटर विल रिव्यू इट वंस अगेन, तो उसके लिए भी सर टाइम जाएगा ना। गिव देम सम टाइम, एंड दैट्स व्हाट, इसके लिए हमने थोड़ा टाइम मांगा है। ये प्रोसेस जब रिव्यू स्टार्ट होगा उस पर आपका लिया जाएगा, दैट विल बी कंसिडर्ड सर। दे विल चेक द एप्लीकेशन वंस अगेन, बट इट इज दैट थोड़ा टाइम लगेगा सर।
दैट्स इट। ये मैडम मेरे को थोड़ी समझ नहीं ना आ रही इसमें। आप तो ठीक जो भी कह रहे हैं, आपने अपना वैसा मन बनाया या आपको वैसे फीडबैक देने के लिए कहा गया है या कैसे भी है, पर आप मुझे एक बात बताइए, जो आप मुझसे प्रूफ मांग रहे थे, प्रूफ किस बात का मांग रहे थे? सारा डेटा तो आप ही के पास होता है, एक्सचेंज के पास। मेरे से तो आप बता सकते हैं कि आप मुझे प्रूफ दीजिए, अपना पैन कार्ड दीजिए, आधार कार्ड दीजिए कि आप वही आदमी हैं। आप मुझसे मांग सकते हैं मेरा यूनिक क्लाइंट कोड आईडी, डीपी आईडी, क्लाइंट कोड आईडी, ये 4-5 चीजें आपको मिल गई, बाकी डेटा तो आपके पास ऑलरेडी है। आपको सिविल कोड थोड़ी ना है कि जज बोलेगा कि हमारे यहाँ तो ट्रेडिंग होती नहीं, आप डेटा लेके आइए एक्सचेंज से। एक्सचेंज के पास तो ऑलरेडी सारा डेटा है। आपको तो मेरी आइडेंटिटी करनी थी कि आपका भैया किस अकाउंट के थ्रू आपने ट्रेड किया है, कौन सा स्टॉक आप बता रहे हैं कि आपको नहीं मिला है, वो डिटेल्स मेरे से लेने थे आपको। बाकी तो सब कुछ आपके पास ही है मैडम। सिविल कोर्ट के जज थोड़ी ना है कि कोर्ट बोलेगी भैया हमारे यहाँ तो ट्रेडिंग होती नहीं, आप पहले एक्सचेंज से लेके आइए डेटा, वेरीफाइड डेटा लेके आइए, ब्रोकर से वो निकलवा के लेके देंगे हमें। डेटा तो सारा आपके पास ही था ना मैडम। सर वी डू अंडरस्टैंड फॉर दिस, क्या दैट्स व्हाट, सर हमें थोड़ा टाइम दीजिए, लेट द ऑडिटर गो वंस थ्रू इट, उनको चेक करने दीजिए। ये तो मैडम बहुत ज्यादा ग्रॉस हो गया ना, मतलब अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि ये बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस हो गया कि सब कुछ था आपके पास, डीपी आईडी था, मेरा क्लाइंट आईडी था, मेरी आइडेंटिफिकेशन थी, मेरा सब कुछ डेटा था, तो आप मुझसे डेटा क्यों मांगते रहे? डेटा तो तब आप मांगेंगे ना आप, अगर आप मेरे पास आपके पास डेटा ना हो, है ना मैडम। जस्ट अ सेकेंड, होल्ड ऑन। ये आपने कभी मेल किया अभी उनको? आज भी किया मैडम, कल भी किया, परसों भी किया, जस्ट अ सेकेंड सर, आज सुबह ही कर दिया। मैंने कहा बात खत्म करें, पूरे डिटेल मैंने प्रेजेंट किया आपको एकदम से तक, सो दैट आई शुड बी एबल टू हेल्प यू आउट, और आप ऑन द स्पॉट जो थोड़ा बहुत वेरीफाई करना है कर पाए। सर होल्ड द लाइन प्लीज। जी मैडम, सो नाइस, थैंक यू सो मच। हेलो, हेलो सर। Yes, madam, please tell me. Yes, sir. Sir, thank you for being online. Sir, we have spoke to the seniors. So, as you said, आपने मेल किया हुआ है ना, तो उनको प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए, लेट देम चेक इट, तो आपको ईमेल पे कंफर्मेशन देंगे सर। मैडम अब की बार मैंने पूरी डिटेल्स बना के ना एक्सेल शीट में और अपना पूरा बैंक दिखा के पूरा, सो दैट आई शुड बी एबल टू हेल्प यू। तो अगर वो आज की सुबह की मेल अभी 5-7 मिनट पहले की है, मैंने आपको कॉल करने से 2 मिनट पहले की है, ठीक है, ठीक है, तो अभी मिल जाएगी हाथों हाथ। अगर ईमेल गुम हो गई फिर मुझे आप करनी पड़ जाएगी, है ना। नहीं सर, मैंने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर दिया हुआ है कि आपकी ईमेल आईडी से आया है, बिकॉज दे आर ऑल्सो अवेयर। सो उन्होंने बोला है कि लेट अस चेक इट, अगर कुछ होगा तो विल रिप्लाई ऑन द ईमेल। आपके जैसे कह रहे हो कि आपको कंफर्मेशन चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपर और नॉट, so they will give this confirmation on the email sir। हाँ जी, डिटेल्स आर गुड इनफ फॉर यू टू मेक अ डिसीजन, तो प्लीज डू लेट मी कंफर्म। और मैं दोबारा कब कॉल करूँ, 1 दिन में, 2 दिन में, कब तक? सर अभी तो बताया मैम को, वो टीम को भी चेक करना था, एटलीस्ट आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए सर। ठीक है मैडम, मैं कल कॉल, इवनिंग तक भी मिल जाए, आई होप सो सर, बाय इवनिंग भी मिल जाए, बट गिव अस सम टाइम सर। बस इतना कंफर्म कर दीजिए, दे आर एडिक्वेट इनफ, है ना। और ये स्टेप 2 में आपके वहाँ लिखा हुआ है कि दिस हैज टू बी डिसाइडेड इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर, है ना। रिड्रेसल कमेटी विल डिसाइड इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर। तो आप जरा थोड़ा हमें फेवरेबल हो जाइए, मेरी इतना ही रिक्वेस्ट है, ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच। सर या डू इन्फॉर्म्ड, लेट्स सी दे चेक इट एंड बाय दिस इवनिंग, और गिव देम एटलीस्ट 2 days का टाइम, लेट देम चेक दैट। कंफर्म इट, डिटेल्स आर एडिक्वेट इनफ फॉर अस टू गिव अस अ डिसीजन इन योर फेवर, एंड देन यू कैन डिसाइड, है ना, इन माय फेवर। मेरे अगेंस्ट करने से पहले आप बता देना कि ये डिसीजन मिसिंग है, ये ना डिसीजन आप कर दें और फिर मेरे पास ऑप्शन ही ना रह जाए। नहीं सर, वही कहना चाहती हूँ, आपने जो एप्लीकेशन दिया भी है, आपने कहा कि आपने ऑलरेडी प्रूफ अटैच किया हुआ है, अगर वो प्रूफ फुलफिल नहीं करते हैं तो दे विल ड्रॉप अ ईमेल टू यू। डिसाइड मत करना मैडम, कोई अंडरटेकिंग मत निकाल देना प्लीज, है ना, क्योंकि मेरा जेन्युइन केस है, मेरा जेन्युइन केस है, प्लीज ट्रस्ट मी, मेरा जेन्युइन केस है। मैं आपको डिटेल्स और वर्कआउट कर लूंगा, मैं थोड़ा टाइम लेके, मेरे को टाइम दे देना आप कि और डिटेल्स अगर चाहिए होता है ना, प्लीज कंफर्म एडिक्वेट की है कि वो आज या कल शाम तक कर दीजिएगा, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैनी थैंक्स, बाय।